یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام آپ ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر سن سکتے ہیں. سوموار 24 فروری کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. جرمنی کے انتخابات میں قدامت پسند جماعت کی برتری. جرمنی کے نئے رہنما نے امریکہ پر انحصار ختم کرنے کی بات کیوں کی؟ Ich sage unseren Wählerinnen und Wählern herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns und das Sie auch mir persönlich. حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ. اسرائیلی فضائی حملے میں ان کی ہلاکت کے تقریباً 5 ماہ بعد اتوار کو بیروت میں ادا کر دی گئی. جنازے میں حزب اللہ کے ہزاروں حامیوں اور شہریوں کی شرکت. This group has entered a new phase with different methods, and the state should take responsibility to stop Israeli attacks. جانیے حزب اللہ کا جنگجو محمد طاہر تباہ شدہ گھر کے ملبے تلے سے 5 ماہ بعد کیسے زندہ برآمد ہوا، اور F-35 جنگی طیاروں کی فروخت صدر ٹرمپ کی پیشکش نے کیسے انڈیا کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے کہا ہے کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے، ٹیکس کا بوجھ کم کرنا ہوگا. This is my personal view that indeed on the salaried class side there is a disproportionately high burden. This is my personal view. مزید یہ کہ پاکستانی چاول کی برآمد میں بڑے اضافے کے بعد اچانک کمی کے پیچھے انڈیا کا کیا کردار ہے. Basmati rice. Now the world's favorite rice preparations are synonymous with the basmati, but now basmati rice is at the center of a bitter tussle between India and Pakistan. اور کرکٹر ابرار احمد کے ایکشن پر ٹرولنگ اور دہلی پولیس کا طنز. پڑوسی ملک سے ابھی کچھ عجیب سی آواز سننے میں آئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آج کے سیربین کا حصہ ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے عالمی خبروں کا خلاصہ. جرمنی میں فریڈرک مرز کی قدامت پسند جماعت کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی نے انتخابات میں واضح سبقت حاصل کر لی ہے. اس کامیابی کے باوجود جماعت کو جو امید تھی وہ کامیابی نہ مل سکی. اس جماعت کو 30% سے بھی کم ووٹ ملے ہیں. فریڈرک مرز، جن کی اب جرمنی کے چانسلر بننے کی راہ ہموار ہو چکی ہے، اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں. فریڈرک مرز نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج رات ہمیں جشن منانا چاہیے، مگر صبح ہم سب کام پر چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ ان چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہیں جن کا انہیں آگے سامنا کرنا ہے. Und dies Ganze zu einem Zeitpunkt, wo nicht nur in Deutschland die Regierung auseinandergebrochen ist, sondern wo ganz Europa nicht weiß, wie Europa eigentlich mit dieser Lage umgeht. ان انتخابات میں دوسرے نمبر پر اکثریت حاصل کرنے والی انتہائی دائیں بازو کی جماعت AFD ہے، جسے 20.8% ووٹ ملے ہیں. اس جماعت کی طرف سے چانسلر کی امیدوار ایلس وائڈل نے اپنے حامیوں کی طرف جیت کا نشان بنایا، اگرچہ ان کی جماعت کو اس سے کہیں زیادہ ووٹ ملنے کے امکانات تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت AFD کے مرکزی دفتر میں سوگ جیسا ماحول ہے. تاہم مشرقی جرمنی میں AFD کو واضح سبقت حاصل ہوئی ہے. ایلس وائڈل نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جرمنی کے عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فریڈرک مرز کی طرف سے اتحاد بنانے کی کوئی بھی کوشش ناکامی پر منتج ہوگی. وہ کہتی ہیں کہ ہم دوبارہ انتخابات کرائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں مزید 4 برس انتظار کرنا ہوگا. یاد رہے کہ 3 سیاسی جماعتوں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، فری ڈیموکریٹک پارٹی اور گرینز کے درمیان طے پانے والا یہ اتحاد جرمنی کے اب تک کے بدترین معاشی اور حفاظتی چیلنجز اور آپسی نظریاتی اختلاف کے نتیجے میں ٹوٹ گیا تھا. اولاف شولز نے اپنے لبرل خیال کیے جانے والے FDP پارٹی کے وزیر خزانہ کو بجٹ پر اختلاف ہونے کی وجہ سے نکال دیا تھا.
शोल्स ने फिर पार्लियामेंट का इजलास तलब किया, मगर वो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में 23 फरवरी के लिए स्नैप इलेक्शन का इनाकाद किया गया। ये इंतखाबात दरअसल गुज़िश्ता बरस सितंबर में होने थे, मगर इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफ के नतीजे में इन इलेक्शंस को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था। जर्मनी के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाले फ्रेडरिक मर्ज, जो अब इस मुल्क के चांसलर बन जाएंगे, ने यूरोप के लिए एक नए दौर का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज की कदामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने इंतखाबात में वाज़ेह सबकत हासिल कर ली है। इस कामयाबी के बावजूद जमात को जो उम्मीद थी वो कामयाबी ना मिल सकी। इस जमात को 30% से भी कम वोट मिले हैं। फ्रेडरिक मर्ज, जिनकी अब जर्मनी के चांसलर बनने की राह हमवार हो चुकी है, ने नेटो के मुस्तकबिल पर सवाल उठाते हुए यूरोपीय ममालिक से जल्द अपने मुअस्सर दिफाई निज़ाम के क़याम का मुतालबा किया है। 2 माह पहले तक अमेरिका के एक करीबी इत्तेहादी के इस तरह से बदलता लहजा जर्मनी की पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की गमाज़ी करता है। Mit der Wortmeldung von Donald Trump zu Zelensky und der Ukraine ist klar, was hier gerade passiert. Der Graben im Atlantik wird tiefer. अमरीकी सदर पहले ही ये इंदिया दे चुके हैं कि वो दूसरी आलमी जंग यानी 1945 से यूरोप के दिफा की जमानत वापस ले सकते हैं। इनके इस बयान पर यूरोपीय ममालिक शिश्तर रह गए। इतवार की रात को फ्रेडरिक मर्ज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिवायती हरीफ रूस की तरह खबर ली। उन्होंने कहा कि अब 2 ममालिक यूरोप के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, यही वजह है कि अब यूरोप को हंगामी फैसला करना होगा। ख्याल रहे कि पीर को फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैख्वा के दौरे के बाद बरतानिया के वजीर आजम जुमेरात को वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा इसराइली फ़ज़ाई हमले में उनकी हलाकत के तकरीबन 5 माह बाद इतवार को बैरूत में अदा कर दी गई है, जिसमें हिजबुल्लाह के हज़ारों हामियों और शहरियों ने शिरकत की है। उनके साथ साथ हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की भी तदफीन की गई है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन के नुमाइंदे और मुल्क के वजीर आजम ने भी हिजबुल्लाह के रहनुमाओं के जनाजों में शिरकत की है। Lebanon's Hezbollah will bury its former leader Hassan Nasrallah in a mass funeral today, nearly 5 months after he was killed in an Israeli airstrike in Beirut's southern suburbs on the 27th of September. Tens of thousands of mourners dressed in black, waving Hezbollah flags with portraits of the slain leader Hassan Nasrallah flocked to his funeral in a stadium on the outskirts. लेबनान की हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह बैरूत के जनूब में एक मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइली फ़ज़ाई हमले में मारे गए थे। कुछ अरसे बाद हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह और ग्रुप के डिफेक्टो सेकंड इन कमांड हाशिम सफ़ीउद्दीन, जो हसन नसरुल्लाह के बाद मुतवक्के सरबराह थे, वो भी इसराइली हमले में मारे गए थे। इसराइल ने इससे कबल धमकी दी थी कि इस ग्रुप के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम की मुद्दत भी मुख्तसर रहेगी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने इतवार को अपने खिताब में कहा कि इस कदर वसी और मकबूल जनाजा लेबनान में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने दसियों हजार अफराद की शिरकत को कौमी इत्तेहाद की अलामत करार दिया। This group has entered a new phase with different methods, and the state should take responsibility to stop Israeli attacks. ईरान के हिमायत याफ्ता नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह के बानी अराकीन में शामिल थे और 3 दहाइयों तक तंजीम के सरबराह रहे, उनकी हलाकत इस तंजीम के लिए एक ज़बरदस्त धचका थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का मुस्तकबिल क्या होगा। ये बात तो वाज़ेह है कि इस वक्त हिजबुल्लाह इसराइल से बराह रास्त लड़ाई मोल लेने के हसन नसरुल्लाह के फैसले पर खड़ी नजर नहीं आ रही है। इस ग्रुप के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि यह लबनान के मफाद में नहीं है कि वो इसराइल के साथ जंग जारी रखे। ताहम नईम कासिम ने गजा पर इसराइल के हमले में मुदाखलत के नसरुल्लाह के फैसले की भी तारीफ की और कहा कि हिजबुल्लाह ने गजा की जंग में मुदाखलत की वजह यह थी कि इसराइल का गजा पर हमला करने के 4 दिन बाद लेबनान पर हमला करने का इरादा था। जल्द या बदीर वो हमला कर ही देता। इसराइली फौज की बमबारी और इसके नतीजे में तबाह व बर्बाद होने वाले लेबनान के एक गांव में गुज़िश्ता दिनों एक शोर उठा कि मोहम्मद जिंदा हैं।
मोहम्मद दाहिर हिजबुल्लाह के एक जंगजू हैं। हालिया दिनों में उनकी सामने आने वाली तस्वीर में वो बड़ी हुई दाढ़ी और लंबे बालों के साथ जीन्स पहने दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने उनके जिंदा होने का जश्न मनाने की गर्ज से उन्हें कंधों पर उठाया हुआ था, लेकिन जश्न मनाने वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि मोहम्मद दाहिर ने इमारत के मलबे तले चंद दिन या हफ्ते नहीं बल्कि महीने कैसे गुजारे हैं। इस दौरान वो तमाम तर इस्राएली बमबारी के बावजूद जिंदा रहे और मलबे और तबाही से भरी जमीन के नीचे एक तवील अरसा गुजारने के बाद दोबारा सूरज देखने के काबिल हुए। वो लबनान में हिजबुल्लाह के लापता जंगजुओं में शामिल थे। वो शायद उन हजारों जंगजुओं में से एक थे जो इसराइल के खिलाफ जंगी मिशन पर सरहदी देहात में अकेले रह रहे थे। इन जंगजुओं में से बहुत से इस्राएली हमलों में मारे गए थे। इसके बाद इस्राएली फौज लबनान के उन सरहदी कस्बों में दाखिल हुई और उनका कंट्रोल संभाल लिया। उस दौरान फौज की जानिब से पहले से तबाह होने वाली इमारतों और घरों पर बड़े पैमाने पर इसलिए बमबारी और गोलाबारी की गई ताकि इन इमारतों के नीचे मुमकिना तौर पर मौजूद हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह किया जा सके। मोहम्मद दाहिर सरहदी कस्बे कफर कला में मौजूद थे और ये उन चंद गांव और देहात में से एक है जो इसराइली बमबारी के नतीजे में मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। यहाँ इसराइल ने एक भी इमारत रिहाइश के काबिल नहीं छोड़ी है। गुज़िश्ता हफ्ते जब इसराइली फौज के निखला के बाद सरहदी पट्टी पर वाक़े कस्बे कफर कला के रिहायशी वापस लौटे तो मोहम्मद अपने दादा के घर के मलबे तले से अच्छी सेहत में दोबारा नमदार हो गए। उनके मलबे तले से जिंदा बरामद होने की खबर लेबनान में जंगल की आग की तरह फैल गई और मोहम्मद दाहिर तवज्जो का मरकज बन गए। लेबनानी फौज अभी भी उस सरहदी कस्बे के रिहायशियों की गाड़ियों को वापस यहाँ दाखिल होने से रोक रही है ताकि पहले इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यहाँ कोई धमाका खेज मवाद बाकी है या नहीं। मोहम्मद दाहिर के अहले खाना समेत कुछ दीगर खानदान पैदल ही इस इलाके में वापस दाखिल हुए हैं। ZBC मोहम्मद दाहिर या उनके खानदान के किसी फर्द से बराह रास्त राब्ता नहीं कर पाई है, मगर हमने इस कस्बे के एक ऐसे रिहायशी से बात की है जो मोहम्मद दाहिर और उनके खानदान को अच्छी तरह जानता है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद तकरीबन 5 माह तक ज़ेरे ज़मीन रहे। ZBC को बताया गया है कि इस कस्बे में वाक़े मोहम्मद दाहिर का ख़ानदानी घर 1950 की दहाई में तामीर किया गया था। उस वक्त इस कस्बे में बनने वाले घरों के नीचे ज़ेरे ज़मीन पनाह गाहें तामीर की जाती थी जो खुराक और सामान ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस रिहायशी के मुताबिक मोहम्मद दाहिर के घर के नीचे भी ऐसा ही एक स्टोर हाउस मौजूद था और जब इसराइली गोलाबारी से ये घर तबाह हो गया तो मोहम्मद ने अपने घर के नीचे मौजूद इसी पनाहगाह में पनाह ली थी। 2 हफ्ते कबल इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि इंडिया अमेरिका से दिफाई सौदे के तहत जंगी साजो सामान खरीदेगा और अमेरिका इंडिया को अपने जदीद तरीन जंगी त्यारे F-35 भी फरोख्त करेगा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad. सदर ट्रंप की जानिब से दिए गए इस बयान को इंडियन मीडिया में अमेरिका इंडिया दिफाई ताल्लुकात में एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया गया, लेकिन अपोजिशन और कई दिफाई माहिरीन ने सदर ट्रंप की F-35 तैयारों की पेशकश को अमेरिका की जानिब से दबाव करार देते हुए इंडियन फजाइया के लिए इस जंगी तैयारे की अफादियत के बारे में सवालात उठाए हैं। याद रहे कि मोदी के दौरे अमेरिका से कबल इंडिया की जानिब से इस तैयारे की खरीदारी के लिए कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की गई थी और दिफाई माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से की गई ये पेशकश बज़ाहिर यकतरफा है। मोदी के दौरे के इख्तिताम पर इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विक्रम ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी ये पेशकश सिर्फ तजवीज़ के मरहले में है, अभी खरीदारी की कोई बात नहीं हुई है। जंगी तैयारों की खरीदारी एक तवील अमल होता है और कई मरहल से गुजरने के बाद इसके बारे में कोई फैसला किया जाता है। इस मरहले पर यह महज एक तजवीज़ है। ये पेशकश बराह रास्त अमेरिका के सदर की तरफ से आई है और कई तज्जियाकारों ने सदर ट्रंप के लबो लहजे से ये नतीजा निकाला था कि जैसे वो ये कह रहे हों कि इंडिया को ये त्यारा खरीदना ही होगा। सदर ट्रंप के F-35 त्यारे इंडिया को देने से मुतल्लक बयान के सामने आने के बाद इंडियन सोशल मीडिया पर ट्रंप के मुशीर और करीबी साथी इलोन मस्क का एक पुराना ट्वीट बड़े पैमाने पर शेयर किया गया।
जिसमें उन्होंने कहा था कि बाज़ बेवकूफ़ अब भी F-35 जैसे पायलट के जरिए प्रवास करने वाले फाइटर जेट बना रहे हैं। नवंबर 2024 को एक्स पर पोस्ट किए गए अपने पैगाम में इलोन मस्क ने कहा था कि कुछ अमरीकी जंगी हथियार अच्छे हैं लेकिन वो बहुत महंगे हैं। बराए मेहरबानी तारीख के हद से ज़्यादा महंगे इस F-35 के प्रोग्राम को बंद कीजिए। इंडिया में भी इस मुतल्लिक बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस के रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत से F-35 की खरीदारी के हवाले से कई सवालात किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या F-35 तैयारों की खरीदारी के बारे में इंडियन फ़ज़ाइया से कोई राय ली गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्या वज़ीर आज़म मोदी को ये नहीं बताया गया कि सदर ट्रंप के सबसे सीनियर वज़ीर इलोन मस्क इस जंगी तैयारे को कबाड़ करार दे चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि टैक्स का बोझ मुसलसल तनख्वाहदार तबके पर है जिसे अब कम करना है और इस बार बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। This is my personal view that indeed on the salaried class side there is a disproportionately high burden. This is my personal view. वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स दायराकार को मज़ीद वुसअत दे रहे हैं। कराची में बैंकिंग समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्मगलिंग रोकने के लिए सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। उन्होंने कहा कि पहली बार अफ़गानिस्तान चीनी स्मगल नहीं बल्कि बरामद हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर से 30 अरब रुपए जमा करके दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस शोबे का कौमी मईशत में अहम किरदार है और बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल व गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया है। ये शोबा मुल्क में दस्तावेज मईशत के फार्मूले पर काम करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक हमें उभरती हुई मंडियों पर तवज्जो देना होगी। निजकारी से बहुत से दीगर शोबों में तरक्की मुमकिन होगी। हमें अब पायदार और शमूलियती तरक्की की जानिब बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। मसनूई ज़िहानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज़ है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के मौक़े पैदा करने हैं। बरामदात पर मबनी तरक्की को फ़रोग़ देना है और ज़रई अजनास की बरामदात हमारा हदफ होना चाहिए। गुज़िश्ता माली साल में 4 अरब डॉलर की चावल बरामद के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया कि मौजूदा माली साल में उसकी बरामद में मज़ीद इजाफा होगा और चावल की बरामद 5 अरब डॉलर हो जाएगी। ताहम इसके बरक्स इस बार चावल की बरामद में कमी रिकॉर्ड की जा रही है और इसका सबूत दिसंबर और जनवरी के महीने के अदादो शुमार हैं। चीला राम ने बताया कि इस वक्त चावल की बरामद कम है और इम्कान है कि आने वाले महीनों में भी इसमें कमी होगी। उन्होंने गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने 4 अरब डॉलर का चावल बरामद किया था, लेकिन इस बार ये हदफ हासिल करना मुश्किल लगता है और इसकी बरामद 1 अरब डॉलर कमी के बाद 3 अरब डॉलर तक नीचे आ सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस कमी की एक वजह तो इंडिया की जानिब से कम अज़ कम बरामदी कीमत ख़त्म करने के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में दोबारा एंट्री है, तो इसके साथ साथ हमारी दाखिला पॉलिसी और दूसरे इश्यूज़ भी चावल की बरामद के लिए मनफी साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में 30 जून 2024 को ख़त्म होने वाले माली साल में मुल्क की बरामदात के अदाद शुमार जब रिलीज़ हुए थे तो उसमें चावल की बरामद 4 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई थी। ताहम गुज़िश्ता 3 माह से चावल की बरामदात में अचानक से बड़ी कमी सामने आ रही है। मौजूदा माली साल के पहले 5 महीनों में चावल की बरामद में तेज़ी से इजाफा देखा गया था। पाकिस्तान दुनिया में बासमती और नॉन बासमती चावल की मुख्तलिफ अक़साम बरामद करता है। बैनुल अक़वामी मार्केट में पाकिस्तान को इंडिया, म्यांमार और वियतनाम के चावल से मुकाबला करना पड़ता है। गुज़िश्ता माली साल और मौजूदा माली साल के पहले कुछ महीनों में तो पाकिस्तानी चावलों की बरामदात में तेज़ी देखी गई। ताहम इसकी बरामद में होने वाले नुमाया इजाफे के बाद अचानक से सिर्फ 2 महीनों में इसकी बरामद में होने वाली बड़ी कमी हैरान कुन है। पाकिस्तान के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर 2024 में चावल की मजमूई बरामद में 50% के लगभग इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में चावल की बरामद मजीद 40% तक बढ़ गई है। अक्टूबर के महीने में नवंबर 2024 में इजाफा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी चावल की बरामद में 20% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में चावल की बरामद में अचानक से 17% के लगभग कमी रिकॉर्ड की गई है।
मौजूदा साल के पहले महीने जनवरी में चावल की बरामद मजीद कम हो गई है, जबकि जनवरी 2024 के मुकाबले में इसकी बरामद में 33% और दिसंबर 2024 के मुकाबले में इसकी बरामद में 11% कमी हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इंतहाई अहम मैच में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी से न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट नाला है, बल्कि शोएब अख्तर जैसे साबिक क्रिकेटर्स इस शिकस्त को नविश्ता दीवार समझते हैं। Exactly this is what happened और बहुत अच्छा खेले as expected। हम तो एज अ फॉर्मर प्लेयर अपनी टीम को बैक कर सकते थे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। रीज़न वाई क्योंकि हमें पता था कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम सिलेक्शन मैनेजमेंट की सिलेक्शन इंतहाई बुरी थी। शोएब अख्तर ने मैच के इख्तिताम पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्हें इस पर कोई हैरत नहीं है। इंडिया ने अपनी शोहरत के मुताबिक मैच में अपनी बर्तरी साबित की, जबकि विराट कोहली ने एक बार फिर बता दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कितने अहम हैं और हदफ का ताकुब करने में उनका कोई सानी नहीं है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन इस बात पर भी तबसरे कर रहे हैं कि इससे कबल उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच इससे ज्यादा एकतरफा मैच नहीं देखा, जिसमें ना तो कोई मोड़ आया और ना ही उम्मीद दिलाने वाला कोई लम्हा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 1980 की दिहाई की क्रिकेट खेली, 300 में से तकरीबन 150 गेंदें डॉट खेली, रन आउट हुए और कैचेस ड्रॉप किए। ऐसे में इब्रार अहमद ने अपना मोराल बुलंद रखा और इंडियन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जब उन्होंने इन फॉर्म बीटर शुभमन गुल को बोल्ड किया तो कमेंटेटर्स ने उनकी उस गेंद को बेहतरीन गेंद करार दिया। इसके बाद इब्रार अहमद ने अपनी आंखों के इशारे से शुभमन गुल को जिस तरह से मैदान से जाने के लिए कहा, उनकी ये अदा बहुत से नाजरीन को पसंद नहीं आई और इंडिया में उन्हें इसलिए ट्रोलिंग का सामना है। सोशल मीडिया पर जहां कोहली उनकी 51वीं सेंचुरी, उनके सबसे तेज 14,000 रन की तारीफ हो रही है, वहीं उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिलनसारी का जज्बा दिखाने पर तनकीद का सामना है। इब्रार अहमद को न सिर्फ इंडिया में ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी सार्फिन की जानिब से भी तनकीद का सामना है और उनके बहुत सारे मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। क्रिकेट लवर्स मायूस हो गए। कराची में मैच हारने पर एक शहरी ने गुस्से में टीवी ही तोड़ दिया। करके निकलो ना, आप आओ ना। क्या किया आज जब दुबई ग्राउंड में? ये कौन सी क्रिकेट है? नहीं, ये कौन सी क्रिकेट है? ये टीम इंडिया को चैलेंज कर रही थी। नहीं, ये टीम इंडिया को चैलेंज कर रही थी। ये अच्छा, ये दिखाने के लिए बोला जा रहा था कि 23 वाला मैच बनाया मैं। निकल मेरे घंटे के बाहर। छी सुसर नामी एक सारिफ ने कोहली के इब्रार से हाथ मिलाने पर भी तनकीद की है और लिखा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ये कोहली की कैसी मोहब्बत है, समझ में नहीं आता। इब्रार से हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? जो आउट होने के बाद गुल का मजाक उड़ा रहे थे, वो यानी कोहली तमाम टीमों के खिलाफ गैर जरूरी जारहियत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो मिलनसार दिखाई देते हैं। न सिर्फ इंडियन सार्फिन अपनी टीम की फतह का जश्न मना रहे हैं, बल्कि हुकूमती इदारे भी इस हवाले से लिख रहे हैं। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, पड़ोसी मुल्क से अभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनने में आई हैं। उम्मीद है कि ये सिर्फ टीवी के टूटने की आवाज़ हो। पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी के बायस अक्सर सार्फिन सोशल मीडिया पर टीम, कोच, सेलेक्टर्स और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और सामीन, इसके साथ ही सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.